In engineering, news record formula for determining the safe load carrying capacity of pile. The factor of safety is used is a 6. News record formula is used to determine the ultimate load carrying capacity QUP of a pile embedded in a sand. It is given by QAP is equals to W capital W into H and FOS into S plus C किसके लिए होता है? फॉर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर. दूसरा था फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए होता है WA+P इंटू H फॉर FOS प्लस S प्लस C. जो W होता है यह वेट ऑफ हैमर होता है if hammer in a kilonewton. FOS is a factor of safety which is generally taken is 6 for all types of hammers. H जो होती है हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर होता है. S जो होता है पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर बिलो इन सेंटीमीटर होता है. C जो होता है कांस्टेंट फॉर अकाउंटिंग इलास्टिक कंप्रेशन फॉर पाइल एंड पाइल कैप होता है. A जो होता है एरिया ऑफ पिस्टन होता है इन मीटर स्क्वायर एंड P जो होता है स्टेम प्रेशर होता है इन किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर में. The value of S, C and FOS for different types of hammer are given below in tabulate forms. देख लेते हैं. सिंगल एक्टिंग हैमर, डबल एक्टिंग हैमर और ड्रॉप हैमर के लिए एस एवरेज वैल्यू 8 लिस्ट 25 लॉज होती हैं. ठीक है. सी जो वैल्यू होती है सिंगल एक्टिंग हैमर के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 6 होती है सिंगल एक्टिंग के लिए. उसके बाद में आता है डबल एक्टिंग के लिए जो एस की वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू फॉर लास्ट 20 ब्लोज होती है. नो डिफाइंड वैल्यू बट जनरली टेकन एज 0.25 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद ड्रॉप हैमर की बात करते हैं तो एवरेज जो वैल्यू होती है फॉर 8 लास्ट और जो सी की वैल्यू होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और जो फोर्थ होता है वो 6 होता है इसमें FOS सॉरी नॉट फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The shear strength of the most important characteristics of the soil. What are the correct regions due to which the shear resistance of soil is occur? Cohesion, structural resistance and frictions. तो कौन कौन से रीजन आएंगे इसमें? तीनों ही सही आएंगे. ABC कोहेजन भी होगा, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा. ठीक है. तो अब इसको समझ लेते हैं. shear resistance in soil occur due to the frictional resistance, cohesive resistance. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट अकाउंट फॉर गेन टू ग्रेन फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कहते हैं. कोहेजिव रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रू कोहेजन और एपरेंट कोहेजन. ट्रू कोहेजन सो shear resistance of soil occur due to friction, cohesion and structural resistance. कोहेजिव रेजिस्टेंस किन किन की वजह से होता है? दो चीज़ों की वजह से होता है, ट्रू कोहेजन एंड एपरेंट कोहेजन्स. ट्रू कोहेजन इज ऑन द अकाउंट ऑफ सीमेंटेशन, electrostatic, electromagnetic attraction and adhesive, whereas apparent cohesion is due to capillary action. नेक्स्ट बात करते हैं. द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ undisturbed sample, undisturbed strength to the remolded strength at same water content. undisturbed strength to the remolded strength को सेंसिटिविटी कहा जाता है. इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सेंसिटिविटी जिसको ST से इंडिकेट किया जाता है. कंसिस्टेंसी ऑफ ए क्ले सैंपल is the altered even at the same water content on its remolding. This change in consistency or loss of stress take place due to the followings. Due to the permanent destruction of soil solid on remolding,
due to change in orientation of water molecules in the adsorbed layer of soil solids. Next आता है sensitivity is defined as the ratio of unconfined compressive strength of undisturbed specimens of the soil to the unconfined compressive strength of specimen of the same soil after remolding at unaltered water content. Sensitivity is equals to undisturbed divided by remolded. It represents degree of disturbance achieved on remolding. नेक्स्ट चलते हैं. The intensity of vertical stress of the soil just below the load point is given by the 4775 Z by Q square. क्या होता है 0.4775 into Z by Q square, where Z is a vertical distance between point load and stress and Q is the point load. Intensity of vertical stress of a soil just below the load point is given 0.4775 into ZQ square. 4775 Z by Q square. इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. ये बोस्निक इक्वेशन फॉर द वर्टिकल स्ट्रेस होती है. ये होती है सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/1 प्लस R/Z का स्क्वायर की होल 5/2. Z is a vertical stress concentrated load Q बराबर Z point below the ground where the stress has to be calculated. R is the radial distance. When we need to calculate the vertical stress exactly below the concentrated point load at R is equals to 0, तब ये हो जाता है R 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 3/2 पाई Q/Z स्क्वायर, इसको टोटल मिला के हो जाएगा 0.4775 Q/Z स्क्वायर. कब वर्टिकल स्ट्रेस एग्जैक्टली बिलो द कंसंट्रेट पॉइंट लोड, एग्जैक्टली बिलो द कंसंट्रेट पॉइंट लोड होगा तो R इज इक्वल्स टू क्या होती है उस जगह पे 0 होती है. द compressibility of filled deposit is somewhat greater than that shown by the laboratory sample. Somewhat greater than that shown by the laboratory sample. Same as that shown by the laboratory sample. Somewhat smaller than shown by the laboratory sample. Not all related to the laboratory sample. नहीं, इसमें ये आएगा somewhat greater than the shown by the laboratory sample. The compressibility of a filled deposit. Compressibility की बात करते हैं. It is the process of decrease in volume of soil mass due to increase in loading. The volume reduction in the soil may be due to compression and expulsions of the pore air, expulsion of the pore water, compression of water and solid molecules, change in the orientations of the molecules. Since water and soil molecules are considered non-compressible, hence on this account volume change is neglected. Compressibility depends upon the magnitude of the effective stress acting on soil at the time and soil types its structure. The compressibility of the filled deposit is slightly greater than that shown by the laboratory sample. A project engineer received a laboratory report of a sample of soil having moist unit weight of 20.5 kilonewton per meter cube. What is the water content available is 25%. Water content available 25% and the specific gravity of soil is 3.335. Find the dry unit weight of the soil. Dry unit weight of the soil निकालना. तो क्या निकालना आपको? गामा ड्राई इज इक्वल्स टू गामा बी डिवाइड बाई 1 + W. ठीक है, तो ये ड्राई यूनिट वेट हो गया, मॉइस्ट हो गया, ये वाटर कंटेंट हो गया. तो आपको क्या क्या दे रखा है इसने? यहाँ पे दे रखा है यूनिट वेट दे रखा है आपको. मॉइस्ट यूनिट वेट कितना दे रखा है?
20.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना दे रखा 0.25, तो ये हो जाएगा 20.5 डिवाइड बाई 1.25, तो इसको काटने पीटने के बाद आएगा 16.4 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है यहाँ पर कोई नो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूज़ नहीं है और यहाँ दे रखा है ये, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड आउट द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। A vertical cut is to be made in a saturated clay. C is equal to 18 kilonewton, phi 0 degree, and gamma is 16 kilonewton meter cube. What is the theoretical depth to which the clay can excavate without side collapse? ठीक है, तो क्या निकालना, ए वर्टिकल कट टू बी मेड इन ए सेचुरेटेड क्ले। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कट क्या होती है, ये होती है एच सी इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी यू गामा इंटू के ए, ठीक है। तो ये जो गामा होता है ये किसके बराबर होता है, गामा सेट के बराबर है यहाँ पे। और फॉर प्योर क्ले के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो अपन को अगर के निकालना है यहाँ पर तो 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई ऐसे निकाल लेंगे, ये कंसेप्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सी कितना दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा फाई दे रखा है आपको 0 डिग्री, एंड गामा दे रखा है आपको 16 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। तो के की वैल्यू निकाल देंगे अपन, तो के की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पुट कर देंगे z इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 18 डिवाइड बाई यूनिट वेट कितना दे रखा 16 इंटू 1 का 1 4 से 4 बार कट जाएगा, ये 9 से ये 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4.5 मीटर। इसमें ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग डायग्राम इज द इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर ओनली सबमर्ज्ड सॉइल मास के लिए, ठीक है। ये जो डायग्राम है इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर ओनली सबमर्ज्ड सॉइल मास के लिए, समझ लेते हैं। द इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल was given by Tarjagi. It is a physical interaction between water and soil solids. This concept was assumed to be applied to fully saturated soil related 3 types of stress, that is total stress, pore water pressure and effective stress. Mathematically समझे इसको, तो effective stress is equals to normal stress minus pore water pressure. The effective stress diagram for a soil effective stress diagram of soil for submerged and saturated soil is different because the buoyancy effect is taken into account in the case of submerged soil. The submerged soil, the pore water pressure is equal to the hydrostatic pressure, which means that the effective stress is reduced to the upward force of the water. Hence, the effective stress in the zone is submerged soil will be 0. So pressure at a depth is given by PATM plus unit weight of water into Z. A pollutant enter in a confined aquifer of 5 meter thick and porosity is 25%. If the CPS discharge through the aquifer is 0.25 meter square per second, the travel time of pollutant for 100 meter, the aquifer will be in seconds.
तो ये सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करना है इसमें, इसकी कैलकुलेशन, इसमें डिस्चार्ज थ्रू एक्वीफर दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, और पोरोसिटी दे रखी है 25%। डेप्थ जो दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर, और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉइड की बात करते हैं, जो यूनिट विड्थ अज्यूम कर लेंगे इसमें। तो एरिया ऑफ वॉइड की बात करें तो एरिया ऑफ वॉइड 5 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा आपके 1.25 मीटर। सीपेज डिस्चार्ज की बात करें सीपेज डिस्चार्ज की बात करते हैं तो ये हो जाता है सीपेज वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ वॉइड, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाता है 0.25 इज इक्वल्स टू बी एस इंटू 1.25। तो बी एस इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो टी बराबर हो जाता है वो हो जाता है 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 500। नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ लो इस चीज़ को। Darcy velocity Vd is the fictitious velocity since it assumes that the flow across the entire cross section of the sediment sample. Flow actually takes place only through the interconnected pore channel voids. In seepage velocity Vs, continuity equation Q constant होता है, A इंटू वी डी होता है, A एंड ए बी इंटू वी एस होता है, Q जो होता है फ्लो रेट होता है, A जो होता है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल होता है, ए बी जो होता है एरिया ऑफ वॉइड होता है, बी एस जो होता है सीपेज वेलोसिटी होती है, डी ए होता है डार्सी विस्कोसिटी, डार्सी वेलोसिटी। एंड सिंस ए ग्रेटर देन ए बी देन क्यू कॉन्स्टेंट एंड बी एस ग्रेटर देन वी डी होता है। A 10 meter deep canal is constructed in purely cohesive soil. C is equals to 0.2 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल्स टू 0, जी बराबर 2.5, ई इज इक्वल्स टू, ये पूरा गिवन दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ नंबर इज 0.1, एक्चुअल रनिंग इन ए फुल कंडीशन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट कोइजन अगेंस्ट फेलियर ऑफ साइड स्लोप विल बी, कितना होगा निकाल लेते हैं। आपको यहाँ एस एन दे रखा है 0.1, ठीक है। सी बराबर आपको दे रखा है 0.2 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा आपके 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एच बराबर जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 110 मीटर और 1000 सेंटीमीटर। जी जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 से लेके, और ई जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5, ठीक है। तो अपन को पता है क्या निकालना, अपन को भी नीड टू डिटरमाइन गामा सबमर्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे गामा सबमर्स, वो निकालेंगे अपन G-1 अपन 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन एस एन, तो एस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी डिवाइड बाई गामा सबमर्ज इंटू एच इंटू एफ। तो ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 इंटू एफ। तो एफ बराबर हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.1, एफ बराबर इसमें 2 आ जाएगा।
the ratio of average permeability in horizontal direction Kn, that is the vertical direction Kb, of 3-layer soil deposit with a thickness of 1 to 3. The permeability of second layer is twice the first, and third is twice, so second Kn and K will भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, the ratio of average permeability in horizontal direction Kn to that vertical direction Kb of 3-layer soil deposit with the thickness ratio 1 to 3. The permeability of the second layer is twice that of first, and third is the twice that of the second. तो क्या होएगा इसका आंसर, समझना पड़ेगा. इसका सॉल्यूशन समझते हैं. यहाँ से सॉल्व करते हैं ऊपर से. यहाँ पे कुछ अलग अलग लेयर्स दे रखी हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है, जो पहली लेयर दे रखी है वो दे रखी है H और K. ठीक है, दूसरी जो दे रखी है वो दूसरे का ट्वाइस है, 2H और 2K. और जो तीसरी लेयर दे रखी है वो 3H और 4K हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर ऑफ लेट द थिकनेस ऑफ फर्स्ट लेयर भी H अपन ने ले रखी है ऑलरेडी. देन थिकनेस ऑफ सेकेंड लेयर होगी अपने पास में 2H. द थिकनेस ऑफ थर्ड लेयर अपने पास में होगी 3H. वैसे ही लेट द परमेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट लेयर भी K, that is K. Okay, thus the permeability of the second layer is 2K and the permeability of third layer is 4K into, because multiple by the 2. The formula of horizontal and vertical क्या होता है, ये होता है आपका K equivalent for horizontal is H1 K1 plus H2 K2 plus H3 K3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3. ठीक है, ये हो गया. अब अगर आपको बात करें K इक्वलेंट फॉर द वर्टिकल, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाई क्या होगा, H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3. ठीक है, ये आपके पास हो जाएंगे. तो आपको K इक्वलेंट निकालना है फॉर किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए. तो क्या हो जाएगा, Kn इज इक्वल्स टू H इंटू K प्लस 2H इंटू 2K. ठीक है, प्लस 3H इंटू 4K डिवाइड बाई H प्लस 2H प्लस 3H. तो ये हो जाएगा 17K डिवाइड बाई 6, K इक्वलेंट फॉर H. ठीक है, वैसे अगर अपन K इक्वलेंट वर्टिकल के लिए निकालते हैं, किसके लिए, K इक्वलेंट वर्टिकल के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में H प्लस 2H प्लस 3H डिवाइड बाई H बाई K प्लस 2H बाई 2K प्लस 3H बाई 4K. और ये हो जाएगा 6H, एक वैल्यू यहाँ आई है, और 2HK प्लस 3H 4K. तो ये आ जाएगा आपके पास में 24/11K. अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं. Kn/Kv का जो होता है वो हो जाएगा 17K डिवाइड बाई 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 24K. तो Kn
वाई के वी का जो रेशियो आएगा निकल के, वो आपके सामने निकल के आएगा 1.29 रेशियो 1.29 इक्वल्स टू 1 रेशियो बाई 0.77 फॉर। नेक्स्ट चलते हैं। In a typical compaction curve indicate in the diagram point A and B have same densities. Choose the most appropriate statements from the followings. तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा soil A will be have more swelling potential and less shrink upon motion variation compared to B. हाँ, पहला ही सही निकला इसमें। soil A will have same swelling and shrinkage potential as soil B नहीं आएगा। soil A will have less swelling potential and higher shrinkage potential compared to B, ये भी नहीं होगा। The swelling shrinkage potential of soil A and B cannot be predicted within the given data, can be predicted with this data। समझ लेते हैं। Effect of compactions और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम है, ये वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम है, ये मॉइस्चर कंटेंट है। ये अलग अलग दो ग्राफ दे रखें, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज समझते हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज ड्राई साइड्स ऑफ द ऑप्टिमम ए, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम बी। स्वेलिंग पोटेंशियल जो है ज़्यादा होएगी और बी के लिए कम होएगी। श्रिंकेज पोटेंशियल ए के लिए कम है, बी के लिए ज़्यादा है। सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोकुलेट है, ए के लिए, दूसरे के लिए डिस्पर्स्ड है। परमेबिलिटी मोर ए के लिए और बी के लिए कम है। कंप्रेसिबिलिटी लेस है ए के लिए और बी के लिए मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ सीड पाइल इन ए ब्रेस्ट कट इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीड पाइल इन ब्रेस्ट कट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बात करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट की। ये क्या है? ब्रेस्ट कट, ये डिफॉर्म्ड कंडीशन, रोटेशन अबाउट टॉप एंड ये प्रेशर डेवलप्ड जो है। लेटरल अर्थ प्रेशर इज द प्रेशर दैट सोइल एक्सर्ट against a structure in a side bay, mainly horizontal direction. Since most open cuts are excavated in stage within the boundaries of sheet pile walls or wall consisting of the solidar piles and lagging, and since struts are inserted progressively as excavation it proceeds, the walls are likely to deform. So in the figure, little inward movement can occur at the top of cut after the first strut is inserted, as the earth pressure magnitude increase due to increase in the effective stress while moving from top to bottom. So deflection of sheet pile in a breast cut increase from top to bottom. Next, which of following equation correctly give relation between specific gravity of soil grain G and hydraulic gradient I in a initial quick condition and sand having void ratio 0.5। तो कैलकुलेशन में E बराबर जो दे रखा है, जैसे दे रखा होता है 0.5, ठीक है। ये void रेशियो जो गिवन है, जो I बराबर होता है वो क्या होता है? G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस E, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो 1.5 I इज इक्वल्स टू G-1 होता है, ठीक है। तो G बराबर होता है 1 प्लस 1.5 I। तो ये सही रहेगा इसका, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। क्विक कंडीशन में, क्विक सैंड कंडीशन, दिस प्रोसेस in which soil particles are lifted over the soil mass is called quicksand condition. Soil particles are lifted over the soil mass.
It is also known as boiling of sand, as surface of sand look at its boiling. At quicksand condition, net effective stress reduced to zero. Net effective stress reduced to zero, and गामा डैश जेड इज इक्वल्स टू पी एस, सीपेज प्रेशर जीरो हो जाता है। ये इसकी इक्वेशन होती है। आई क्रिटिकल के लिए गामा डैश बराबर यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट under which quicksand condition occur in terms as critical hydraulic gradient if the void ratio and specific gravity of soil is known। नेक्स्ट बात करते हैं two footing, one circular and other square are found on the surface of purely cohesionless soil. The diameter of circular footing is the same as that of the side of square footing. The ratio of their ultimate bearing capacity is क्या होगी? इसमें दे रखा है आपको गिवन सॉइल ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सॉइल क्या है? कोहेसिव, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सी बराबर आपको 0 दे ही रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फाउंडेशन इज लेड ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। सो डी एफ इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्यू यू बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0.3 इंटू गामा इंटू वी इंटू एन गामा। तो क्यू यू इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर फुटिंग के लिए। स्क्वायर फुटिंग के लिए क्यू यू इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन गामा। सो क्यू यू इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन गामा, ये सेकंड हो जाएगा इस जगह पे। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? इसका रेशियो निकल के आएगा 3/4, तो इसमें आ जाएगा 3/4, यानी ये आएगा इसका आंसर। देख लेते हैं। वी नो स्क्वायर फुटिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाई 1.3 इंटू सी इंटू एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू 0.4 गामा बी एन क्यू हो जाएगा। सर्कुलर फुटिंग के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 1.3 सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू। यहाँ तक दोनों का सेम रहेगा पोर्शन। यहाँ 0.4 आ जाएगा स्क्वायर के अंदर, 0.3 आ जाएगा किसके अंदर? सर्कुलर के लिए, ठीक है। काफ़ी मिनट हो गई, चलते हैं आगे, बंद करते हैं।